نیٹ کا دوبارہ امتحان بغیر کسی غلطی کے منظم اور مناسب ڈھنگ سے منعقد کرانے کی مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کی یقین دہانی۔ بھارت میں سوئٹزرلینڈ کی سفیر مایا ٹسافی کی سری نگر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات، سیاحت اور باغبانی سیکٹروں سمیت باہمی مفاد کے وسیع امور پر تبادلہ خیال۔ عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی سڑکوں پر گہما گہمی، سری نگر کی پارکوں اور باغات میں لوگوں کا بھاری رش۔ اور سپریم کورٹ کی سبھی ہائی کورٹس کو اپنے محفوظ کیے گئے فیصلے 3 ماہ کے اندر اندر سنائے جانے کی ہدایت۔ آداب ناظرین، خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آج کہا ہے کہ نیٹ کا پیپر افشا ہونے کا واقعہ انتہائی افسوسناک تھا، جبکہ ایسا واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ ڈی ڈی نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں دھرمیندر پردھان نے کہا کہ بغیر کسی غلطی کے ایک منظم اور مناسب ڈھنگ سے دوبارہ امتحان کا انعقاد کیا جائے گا۔ وزیر موصوف نے اس بات کا بھی پھر یقین دلایا کہ بڑھتی ہوئی تشویش کے پیش نظر غلطی سے پاک امتحان کا انعقاد کرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کہ امتحان کے عمل میں مستقبل میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جو غلطی ہوئی ہے، ہماری ٹرسٹ کو بریچ کیا گیا ہے۔ جو رکشک تھا وہی بھکشک ہوا۔ جو شکشک کو ہم نے ذمہ داری دیا تھا کوشچن بنانے کے لیے، انہوں نے ہی کمپرومائز ہوا ہے، انہی کے کارن یہ اویوستھا شروع ہوئی ہے۔ ہم نے ایک کٹھور نرنے کیا کہ ہم نے ایک بھی صحیح ودیارتھی کے حق کو پریکشا مافیاؤں کی ہاتھ میں سونپنا نہیں چاہتے تھے، ان کے षड्यंत्र کی شکار نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ہم نے اسی لیے گنوتا اور پاردرشتا کے لیے، کوالٹی اور ٹرانسپیرنسی کے لیے ہم نے کٹھور نرنے لیا ہے۔ ہم بچوں کی مانسک استھتی کو سنمان کرتے ہیں، ان کو سنبھالنا چاہتے ہیں، اور ہم کو ایک ایرر فری ایگزامینیشن دینے کا پورا ہماری پریاس ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال نے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اس لڑائی کے خلاف دوہرے معیار نہیں ہو سکتے ہیں۔ روس میں بین الاقوامی سیکیورٹی فورم سے خطاب کرتے ہوئے اجیت ڈووال نے کہا کہ ذمہ دار ملکوں کو اپنی ترجیحات اور پسند کا جائزہ لینا ہوگا اور یہ طے کرنا ہوگا کہ آیا وہ دہشت گردی کے حامیوں کی مدد کرتے ہیں یا وہ فیصلہ کن کارروائی کے ساتھ اس کی روک تھام کے حق میں ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ماسکو میں بھارت کے سفارت خانے نے کہا ہے کہ اجیت ڈووال نے اس پہلی بین الاقوامی سیکیورٹی فورم میں شرکت کی۔ سفارت خانے نے اجیت ڈووال کا حوالہ دے کر خبر دی ہے کہ انہوں نے اس اجلاس میں بین الاقوامی آبی گزرگاہوں بشمول آبنائے ہرموز کے ذریعے محفوظ اور بلا خلل تجارت کی نقل و حمل کو یقینی بنانے کی ضرورت بھی اجاگر کی۔ بھارت میں سوئٹزرلینڈ کی سفیر مایا ٹسافی نے آج سری نگر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ پائیدار سیاحت، ہارٹیکلچر اور اس سے منسلک سیکٹروں سمیت باہمی مفاد کے وسیع امور پر تبادلہ خیال کیا۔ عید الاضحیٰ کے آج لگاتار تیسرے روز سری نگر کے پارکوں اور باغوں میں لوگوں کا تانتا بندھا رہا۔ بڑی تعداد میں بچے اپنے افراد خانہ کے ساتھ عید کی خوشیاں منانے کے لیے ان باغوں کا رخ کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ سیاحوں کی اچھی خاصی تعداد نے بھی ان باغوں کی سیر کی۔ اس دوران بچوں کو خوشگوار موسم کے بیچ موج مستی کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ دریاسنا سری نگر میں آج بھی جموں کشمیر کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے عوامی وفود، معزز شہریوں، پارٹی لیڈروں اور کارکنوں نے نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ساتھ ان کی رہائش گاہ پر ایام عید الاضحیٰ کے موقع پر ملاقات کی۔ اس موقع پر پارٹی کے نائب صدر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ نے ان سے ملاقات ہونے والے تمام وفود کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ذی الحجہ کے مقدس مہینے اور عید قربان کے صدقے جموں کشمیر کے عوام کو امن، خوشحالی، تعمیر و ترقی اور کامیابیوں سے نوازے۔ ڈاکٹر فاروق نے تمام وفود بشمول پارٹی لیڈران اور عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ خدمت خلق کے جذبے کو اپنا شعار بنائیں اور ہر وقت عوام کے درمیان رہ کر ان کے مسائل کے حل کے لیے کام کریں۔ خبریں جاری ہیں، پہلے رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
अब लीकेज को कहिए बाय बाय। रैक्थम अल्टीमेट पाइपिंग सॉल्यूशंस, इंजीनियर्ड पाइपिंग सिस्टम्स, ग्लोबली सर्टिफाइड एंड recognized, long-lasting piping solution with all types of plumbing pipes, sewerage pipes, and electric conduits, bringing the most comprehensive piping solutions for diverse water applications. Ractham UAE wishes whole Ummati Muslima Eid Mubarak. अस्सलामु अलैकुम। तहफ़्फ़ुज़ सोसाइटी की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को दिल की उम्मीद गहराइयों से ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुनाफ़ा सुबहानी वैली फर्टिलिटी सेंटर की तरफ से उम्मत मुस्लिमा को दिल की उम्मीद गहराइयों से ईद मुबारक पेश करती हूँ। अब लीकेज को कहिए बाय बाय। रैक्थम अल्टीमेट पाइपिंग सॉल्यूशंस, इंजीनियर्ड पाइपिंग सिस्टम्स, ग्लोबली सर्टिफाइड एंड recognized, long-lasting piping solution with all types of plumbing pipes, sewerage pipes, and electric conduits, bringing the most comprehensive piping solutions for diverse water applications. Ractham UAE wishes whole Ummati Muslima Eid Mubarak. खबरों में एक बार फिर आपका खैर मकदम। MLA शोपियां शबीर अहमद कुल्ले ने आज तहसील केलर के पहली पोरा और मुल्हिका गाँवों के जालाबारी से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और इन इलाकों में सेब बागात और दीगर मेवा फसलों को पहुँचे नुकसान का जायज़ा लिया। शबीर अहमद ने मकामी फ्रूट ग्रोवर्स के साथ तबादला ख्याल करते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि महकमे बागबानी नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाएगा और ये कि मुआवजा का मामला सरकार के साथ उठाया जाएगा। MLA अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी ने आज अपने हलके के कई इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने मकामी लोगों और किसानों के साथ बातचीत करते हुए ज़मीनी सतह पर सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने कई इलाकों में खुश्क साली जैसी सूरत हाल की वजह से सिंचाई की सहूलियत नाकाफ़ी होने पर तशवीश ज़ाहिर की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी तरजीह हलके के लोगों को बेहतर सहूलियत फराहम करना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 1 जून सोमवार को कुलगाम में मनशियात मुखालिफ पद यात्रा की क़यादत करेंगे। इस ताल्लुक से डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने SSP कुलगाम इनायत अली चौधरी के हमरा लारू बस स्टैंड, जहां ये पद यात्रा मुनक्किद होने वाली है, की जगह पर किए जा रहे इंतजाम का आज जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मुतलका महकमों के हुकाम को मुनासिब तालमील और तमाम ज़रूरी इंतजामात बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी ताकि ये पद यात्रा आहसन और कामयाब तरीके से मुनक्किद की जा सके। काबिल ज़िक्र है कि मनशियात मुखालिफ पद यात्रा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर की जारी मुहिम के हिस्से के तौर पर मुनक्किद की जा रही है, जिसका मकसद मनशियात की बिद्दत के ख़िलाफ़ बेदारी को मुस्तहकम करना है। नाज़िम ज़राअत कश्मीर सरताज अहमद शाह ने ज़रई सेक्टर को मुस्तहकम करने में आबपाशी के अहम रोल को उजागर किया है और कहा है कि माइक्रो इरिगेशन की जदीद सहूलियत की दस्तियाबी से किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने फसलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सिंचाई के मुतवाज़िन बंदोबस्त और माइक्रो इरिगेशन के बुनियादी ढांचे को वुसअत देने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया है। जो इरिगेशन है, इट इज़ वेरी क्रिटिकल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट शुड बी मीटर्ड। जब भी कभी डेफिसिट हो जाता है रेनफॉल, तो दोज एरियाज वायर वी डोंट हैव एश्योर्ड इरिगेशन, वहाँ पे काफ़ी सफ़र हो जाता है एंटायर क्रॉप, और कभी कभार बिल्कुल कुछ निकलता भी नहीं है। जितना सीड लगाया जाता है या तो उतना ही निकलता है या उससे भी कम निकलता है। और अगर हमारे पास ये माइक्रो इरिगेशन अवेलेबल हो, ये फैसिलिटी, चाहे ड्रिप हो चाहे स्प्रिंकलर हो, इससे हमें कम पानी में ज़्यादा क्रॉप उगाने में काफ़ी सहूलियत होगी। गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान जनूबी कश्मीर के कई इलाकों बिलखसूस ज़िला अनंतनाग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की जदतकारी समेत सड़क रवाबित के कई मनसूबों को तक़वियत दी है। DD न्यूज़ से बात करते हुए आम लोगों ने कहा है कि इन मनसूबों के ज़रिए तिजारत, सियाहत, बागवानी, तिबी निगहदाश्त, नीज ट्रांसपोर्ट के शोबों को फ़रोग मिला है, जिससे इलाके में न सिर्फ लोगों और मकामी बागबानों को कई तरह की सहूलियत मैसर हुई है, बल्कि इलाके के नौजवानों को रोज़गार के बेशुमार मौके भी हासिल हुए हैं। पहले तो हमें सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के जो हमारी जो लीडरशिप है उसको हम सलाम करते हैं कि हमें आज से 5-10 साल पहले हमें जब जम्मू जाना होता था श्रीनगर से अनंतनाग से, हमें 6 घंटे 7 घंटे का सफ़र ये हो जाता था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में हमें 3 घंटे का भी सफ़र नहीं बन गया है। आप देखिए यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग, 4 लाइन्स, 6 लाइन्स हर जगह पहुँच गई है। अगर हम बात करेंगे एजुकेशन का, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का, हमारे IIM, IITs, यूनिवर्सिटीज़, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़, एकेडमिक यूनिवर्सिटीज़ का एक बहुत बड़ा जाल बिछा है,
जहाँ तक हम हेल्थ सेक्टर का, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट की बात करेंगे, हमारे हॉस्पिटल्स जो हमारे पुराने हॉस्पिटल्स थे वो टेरिशरी केयर हॉस्पिटल्स बनने जा रहे हैं। छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में तब्दील हो गए हैं। 12 सालों में बहुत काम हुआ है। टनल के हवाले से काम हुआ है, फार फ्लंग एरियाज में काम हुआ है। जहां पर मुश्किल था कि रोड पहुंचना, वहां पर इस वक्त रोड कनेक्टिविटी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुल्क के सभी हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि वो अपने महफूज किए गए फैसलों को 3 माह के अंदर अंदर सुना दें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि फैसलों को सुनाने में ताख़ीर से मुकदमे के फ़रीक़ैन को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि ज़ाती आज़ादी के मामलात में तेज़ रफ्तारी से किए गए फैसलों की ज़रूरत होती है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि ज़मानत की दरख्वास्तों में फ़ैसले उसी रोज़ सुना देनी चाहिए और अगर उन्हें महफूज रखा जाता है तो फिर उन्हें अगले ही दिन सुनाकर अपलोड कर देना चाहिए। नवाटा श्रीनगर के जामिया मस्जिद इलाके में आज दोपहर आतिशबाजी के वाक़े में एक लहंगा दुकान उसकी जद में आ गया है। हुकाम ने कहा है कि आग की इस वारदात से इलाके में खौफ हरास फैल गया। ताहम आग बुझाने वाले अमले की टीमें जाए वारदात पर पहुंच गई और उन्होंने कड़ी मुशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। आग की असल वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। उधर ज़िला अनंतनाग के ज़रपोरा बिजबेहाड़ा में आग की एक और वारदात के दौरान 3 मंजिला तिजारती इमारत और 2 मंजिला रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। आग की इत्तला मिलते ही मुतलका फायर एंड एमरजेंसी अमले ने आग बुझाने की कार्रवाई की और आग को मज़ीद ढांचों तक फैलने से रोका। दूर दराज और सरहदी इलाकों में तलबा को जदीद तालीम और हुनरमंदी के तकाज़ों से हम आहंग करने की पहल के तहत कुपवाड़ा के अमरोही गाँव में समाजी कारकुन रोबुल नेगी ने रोबुल नेगी आर्ट फाउंडेशन के बैनर तले मदरसा इस्लामिया अरबिया लिसानुल कुरान में कंप्यूटर स्किल सेंटर का इफ्तिताह किया। मकामी लोगों ने इलाके में कंप्यूटर सेंटर के क़याम का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इस सेंटर के तवस्सुत से मकामी तलबा को कंप्यूटर की तालीम से हमकिनार होने के लामहदूद मौक़े हासिल होंगे। वादी के बुलंद पाए अवलिया कामिल हज़रत मोहम्मद बसीर अलमारूफ मलबाब सब रहमतुल्लाह अलैह खंदबवन नवाकदल, हज़रत शेख मुला आखुन रहनुमा रहमतुल्लाह अलैह गोजवारा और हज़रत सैयद अली अकबर रहमतुल्लाह अलैह फ़तेह कदिल के उर्स-ए मुबारक आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाए गए। इस मौके पर सुबह सवेरे से ही उनके बुक्काजात पर कुरान खानी, ख़त्मातुल मौज़मात और दरूद अज़कार की मजालिस आरस्ता हुई और इसके दौरान उलमाए किराम ने बुज़ुर्गान दीन की तालीमात, सीरत और उनके तारीख़ साज इस्लामी खदमात भी बयान किए। इस दौरान जम्मू कश्मीर में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए दुआएँ मांगी गईं। महकमे मौसमियात श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश, गरज चमक के साथ छींटे पड़ने, जालाबारी होने और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया है। महकमे के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए ये जानकारी दी है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ। इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफ़िज़।